نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، باواد بلند صلوات۔ انہی نعروں کی گونجتی آواز کے سائے میں دعا مانگ لے کہ خلاق عالم اس ادارے کے بانی حضرت علامہ الحاج ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور آپ سب کو میں اہل و عیال کے صحت کاملہ کے ساتھ قائم و دائم رہنے کی توفیقات پر قائم و دائم رکھے۔ بانیان مجالس عشرہ کی جو نیک تمنائیں اور آرزویں ہیں خلاق عالم ان کو باثمر فرمائے۔ باواد بلند صلوات۔ صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت حضرت علامہ آیت اللہ مقدس اردبیلی صاحب نے اپنی کتب میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ حضرت امام آخر الزمان علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو کر صرف جناب عیسیٰ ہی نماز نہیں پڑھیں گے، یعنی فقط صرف حضرت عیسیٰ، خیر بیٹا تمہیں ٹھیک ٹھاک ہو، اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو کر امام پاک کے پیچھے نماز پڑھ کر یہ بتائیں گے کہ یہ امام ابن امام صرف تمہارا امام نہیں بلکہ ہمارا امام بھی ہے۔ تو اسی طرح ہماری تقریباً جس قدر کتب امام پاک کے موضوع پر ہیں ان سب میں یہ فرمان موجود ہے کہ اول من یبایع لہ فہو جبرائیل، سب سے پہلے امام پاک کے ہاتھ دست حق پرست پر جو بیعت کریں گے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں گے۔ اور حضرت آیت اللہ قزوینی مرحوم و مغفور نے اپنی کتاب الامام من المہدی المہدی من المہدی الی اللحد میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی امام پاک کی بیعت کریں گے، اور صرف بیعت کریں گے نہیں بلکہ اعلان کریں گے کہ لوگوں میں عیسیٰ بے شک روح اللہ ہوں، لیکن میں نے کسی معمولی ہاتھ پر بیعت نہیں کی بلکہ یہ ہاتھ ید اللہ ہاتھ۔ اللہ درود پڑھیے گا، صلوات۔ اب یہاں پر حضرت علی علیہ السلام کے خطبے کے چند ایک کلمات ہیں جو میں ادا کر کے پھر آگے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس میں حضرت علی علیہ السلام نے بھی یہی ارشاد فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں انا الذی تزورہ ملائکۃ السماوات، میں علی وہ علی ہوں کہ زمین والے تو اپنی جگہ پر رہ گئے، خود آسمان کے ملائکہ بھی میری زیارت کے لیے منتیں مانتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں انا لسان اللہ ناطق، میں اللہ کی منہ بولتی زبان، وحجت اللہ علی خلقہ، اور اللہ کی تمام مخلوق سے میں اللہ کو اللہ منوانے کی دلیل ہوں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں انا ید اللہ القوی، میں
اللہ کا وہ ہاتھ ہوں جس کی قوت میں کبھی فرق نہیں آ سکتا۔ اب مجھے اسی پہلو کو لینا ہے کہ ہم پر سب سے بڑا اعتراض جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ شیعہ حضرات اپنے ہر امام کو ید اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ تسلیم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس سے مراد یہی نہیں کہ شیعہ حضرات در پردہ اپنے آئمہ کو اور بالخصوص علی کو اللہ تسلیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ لفظ ید اللہ کے معنی کیا ہے۔ توجہ فرمائیے آپ صاحبان، کیونکہ ہر لفظ اپنے دامن میں دو معنی رکھتا ہے۔ ایک معنی حقیقی ہوتا ہے اور ایک معنی مجازی ہوتا ہے۔ مثلا میں ہوٹل سے چلا، یہاں تک پہنچتے پہنچتے جو ٹائم لگ گیا تو میں نے نصیر شاہ صاحب سے کہا کہ بیٹا آج تو بہت ٹائم لگ رہا ہے۔ تو خیر جیسے ہی منہاج الحسین سینٹر قریب آیا مجھے کہنے لگے قبلہ اتنے لیٹ نہیں ہوئے، منٹ دو منٹ لیٹ ہوئے، وہ دیکھیے منہاج الحسین آ گیا۔ منہاج الحسین آ گیا، غلط، بالکل غلط۔ منہاج الحسین تو نہیں آیا، وہ تو جس زمانے سے جس جگہ پر ہے وہی ہے۔ منہاج الحسین نہیں آیا بلکہ ہم آ گئے۔ لیکن جب انہوں نے کہا منہاج الحسین آیا تو ذہن میں نتیجہ آ گیا کہ ہم منہاج الحسین آ گئے۔ اسے کہتے ہیں مجازت۔ مثلا میں نے بچے سے کہا پانی دو، اس نے مجھے پانی دیا، میں نے تھوڑا سا پانی پیا، بعد میں پلٹا دی بوتل۔ آپ میں سے کسی نے پوچھا عثمان صاحب پانی پی لیا؟ میں نے کہا ہاں، میں نے بوتل پی لی، حالانکہ بوتل تو نہیں پی جاتی، پیا تو بوتل کا مظروف جاتا ہے، یعنی جو اس میں پانی ہے یا جو کچھ ہے وہ پیا جاتا ہے۔ تو جیسے میں نے کہا بوتل پی لی تو اس کہنے والے نے سمجھ لیا کہ پانی پی لیا۔ تو اسی طرح ہر لفظ اپنے دامن میں دو معانی رکھتا ہے، ایک معنی حقیقی، ایک معنی مجازی۔ تو اب ہم آتے ہیں یدن پر کہ لفظ یدن جو کلام مقدس کی 3 آیات میں یہ لفظ یدا ہو ہے، یعنی اس کے 2 ہاتھ۔ 5 آیات میں لفظ یدن ہے یعنی صرف ہاتھ۔ 8 آیات میں لفظ یدہو ہے یعنی اس کا ہاتھ۔ 14 آیات میں لفظ ایدیکم ہے یعنی تمہارے ہاتھ۔ 37 آیات میں لفظ ایدیہم ہے یعنی ان کے ہاتھ۔ توجہ فرمائیے آپ صاحبان، ذرا درود پڑھیے گا صلوات۔ مہربانی باقی آیات میں ضمائر منفصلہ اور ضمائر متصلہ کے ساتھ لفظ یدن کلام مقدس میں موجود ہے، لیکن لفظ کے معنی وہی، ایک حقیقی ہے ایک مجازی ہے۔ اب پہلے میں حقیقی معنی کے متعلق عرض کرتا ہوں قرآن سے، پھر میں انشاءاللہ آگے بڑھتا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہے سورہ نمبر 33 احزاب میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا بھی باپ نہیں ہے۔ تو اب آیت نے بتا دیا، اب ان کا معنی ہے باپ، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، یعنی جو تمہارے ہیں ان کا باپ نہیں، تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ لیکن اب پھر ہم ایک اور آیت پڑھتے ہیں سورہ النساء کی، یعنی امتیوں کو منع کر دیا گیا کہ خبردار
کبھی اپنے امتی ہونے پر ناز کرتے ہوئے یہ نہ کہہ دینا کہ محمد ہمارا باپ ہے. نہیں، تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ وہ کسی کا باپ ہی نہیں ہے. نہ، اب سورہ النساء کی آیت ہے کہ میرے حبیب ان نصارہ سے کہہ دو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. ان سے کہہ دو کہ آؤ ہم اپنے بیٹے بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹے بلاؤ. تو آیت نے بتا دیا نا اپنوں کا باپ ہے. میں بڑے عرصے سے چند ایک اس موضوع پر آ کر کلمات ادا کرتا چلا آ رہا ہوں زندگی میں، اور میرے سامعین اچھی طرح جانتے ہیں کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، لیکن اپنوں کا باپ ہے. کیا مقصد؟ یعنی زکات والوں کا باپ نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی محمد زکات والوں کا باپ نہیں، لیکن صلوات والوں کا باپ ہے، صدقے والوں کا باپ نہیں، جنہیں کھجوریں اٹھا کے دے دی گئی. جب تک خیبر فتح ہی نہیں ہوا تھا پیٹ بھر کر کھجوریں ہی نہیں کھائیں. محمد صدقے والوں کا باپ نہیں، ہدیے والوں کا باپ ہے. محمد در پہ رکنے والوں کا باپ نہیں، چادر میں بیٹھنے والوں کا باپ. بڑھیا جیو، سلامت ہو. اللہ حضور ایک فکرہ دینا چاہتا ہوں جس کے لیے بڑی توجہ چاہتا ہوں. محمد سافلین والوں کا باپ نہیں، محمد سافلین والوں کا باپ نہیں، آلین والوں کا. محمد سافلین والوں کا باپ نہیں، آلین والوں کا باپ ہے. محمد شجرۃ الخبیثہ والوں کا باپ نہیں، محمد شجرۃ الطیبہ والوں کا. سبحان اللہ. درود پڑھیے گا. اب یہاں پر ہم ذرا اور آگے بڑھتے ہیں اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ رسول پاک کے متعلق ہم حدیث کی طرف اسی ابن کو مد نظر رکھتے ہوئے رجوع کر رہے ہیں تاکہ حقیقت اور مجاز کا معنی ہم پر واضح ہو سکے. پہلے میں نے قرآن سے حقیقی معانی کو بیان کیا ہے، اب ہم مجازی معانی کی طرف بڑھتے ہیں. پہلی کتاب کا نام ہے ترمذی شریف، دوسری کتاب کا نام ہے ابن ماجہ، تیسری کتاب کا نام ہے مفردات راغب اصفہانی جس کا دوسرا نام اصل میں ہے مفردات القرآن، چوتھی کتاب کا نام ہے مستدرک للحاکم. میں ان چاروں کتابوں سے لے کر یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، ان میں ایک بھی میں نے شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا. ان میں درج ہے کہ رسول پاک نے علی کی طرف دیکھا، قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انا وانت ابا هذه الامہ. جو سمجھ گئے ہیں وہ ذرا ساتھ میں ابھی ترجمہ عرض کرتا ہوں کہ اے علی، تو اور میں اس امت کے روحانی اور ایمانی باپ ہے، حقیقی باپ نہیں. اب یہاں معنی آ گیا مجاز کا کہ میں اور تو اس امت کے ایمانی اور روحانی باپ ہے. اب کون کون امت میں شامل ہے یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں. لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، جس
जिसका वो नबी है, आप जो वो जली है, जिसका वो रब है, उसी का ये नबी है। तो जिसका नबी है वो रसूल का उम्मती है। तो आदम से लेकर ईसा तक हर नबी क्या है? मोहम्मद का उम्मती। तो जिसका मोहम्मद रूहानी बाप है, उसी का अली रूहानी और ईमानी बाप है। अब देखना पड़ेगा कि कौन बाप का बनता है और कौन नहीं बनता। पढ़ रहा हूं शिया कुतुब में से, बिहार और मुबारक जेल नंबर 39 सफा नंबर 299, हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आपका एक सहाबी अर्ज करता है, मौला आप अक्सर फरमाते हैं कि मैं फर्जंदे रसूल हूं, फर्जंदे अली व बतूल हूं, और इसके साथ साथ आप ये भी फरमाते हैं कि मैं विलायत अली पर कायम व दायम हूं। तो मौला इन दोनों चीजों में से, इन दोनों फजीलतों में से ज्यादा महबूब आपको कौन सी फजीलत है? आया आपका औलादे अली व बतूल होना, औलादे रसूल होना आपको ज्यादा महबूब है, या विलायत अली पर कायम व दायम रहना ये आपको ज्यादा महबूब है? अब अगर मैं किसी और मकाम पर पढ़ रहा होता तो तसव्वुर में आ जाता कि पता नहीं ये हदीस है भी सही या नहीं है, गुलफाम साहब ने सुना दी है, लेकिन मैंने हवाला दे दी है, लाइब्रेरी मौजूद है, मेरे जाने के बाद तसल्ली फरमा लीजिएगा। ये आपको किताब निकाल कर दिखा देंगे। बिहार बाप इसमें से जल्द नंबर 39 सफा नंबर 299। जब साहिब ने ये कहा कि मौला आपको इन दो में से ज्यादा महबूब क्या है, तो आप फरमाते हैं विलायती ले अली इब्न अबी तालिब। वाह साहब, हदीस पूरी समाप्त फरमा दे, फिर जितने मर्जी में आए नारे लगाए। विलायती ले अली इब्न अबी तालिब अहब्बु इलैया मिन विलादती मिनहु। मेरा अली व बतूल की औलाद में होने से निस्बत ज्यादा मुझे महबूब है अली इब्न अबी तालिब की विलायत पर कायम रहना, यानी अली का मौलाई होना मुझे उनके बेटे होने से ज्यादा महबूब है। जैसे अक्सर आप चुप कर गए हैं, बल्कि मुझे बड़े हैरानी से देख रहे हैं कि गुलफाम साहब ने ये क्या पढ़ दिया, मैंने नहीं पढ़ा, ये इमाम फरमा रहे हैं। तो वो साहिब भी हैरान हो गया, बल्कि तड़प कर कहते हैं मौला जब बेटे होने की निस्बत आपको अली की विलायत पर कायम और दायम रहना ज्यादा महबूब है। फरमाया हाँ। कहते हैं मौला कोई दलील देंगे? इसकी दलील क्या है? फरमाया सुन, ये दलील इसकी ये है जो मैं तुझे दे रहा हूं, ले अन्ना विलायती ले अली इब्न अबी तालिब फर्जुन। अल्लाह करे तर्जुमे से पहले आप ले लें, ले अन्ना विलायती ले अली इब्न अबी तालिब फर्जुन व विलादती मिनहु फजलुन। मेरा अली का और बतूल की रसूल की औलाद में से होना ये अल्लाह का मुझ पर एहसान है, और विलायत अली पर रहते हुए मौलाई होना ये मुझ पर वाजिब।
علی کی ولایت کے بغیر نہیں ہوتا تو تیرا میرا گزارا علی ولی اللہ کے بغیر سبحان۔ تو یہ مجھے آج کرنا تھا۔ لفظ جدوں کے دو معانی ہر لفظ کے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ لفظ کے دو معنی، ایک حقیقی اور ایک مجازی۔ تو جدوں کے بھی ایک حقیقی معنی ہے، یہ ہاتھ ظاہری ہاتھ، یہ چار انگلیاں، ایک تھام، یہ کف دست، یہ پشت ہتھیلی، یہ رگیں، ان میں خون، ان میں گوشت، یہ ہے ظاہری ہاتھ، حقیقی معنی۔ مجازی معنی کے لیے جب ہم لغت کی طرف رجوع کرتے ہیں تو 8 معانی با اعتبار لغت لفظ یدوں کے موجود ہیں۔ آج کی تقریر میں زیادہ سے زیادہ 2 معانی یا حد 3 معانی بیان ہو سکیں گے، اولا تو 2 یا شاید تیسرے کی طرف میں رجوع کر سکوں۔ تو اب لفظ یدوں کا ہم پہلا معنی دیکھتے ہیں کہ پہلا معنی لفظ یدوں کا کیا ہے۔ تو جب ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو کتاب کا نام ہے التحقیق فی القرآن الکریم، جلد نمبر 14، میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں۔ اس میں یہ ترک ہے کہ اس کا معنی ہے، پہلا معنی ہے النعمت۔ یدوں کا پہلا معنی ہے النعمت۔ بچوں چپ کر گئے ہو نا، رات دن پڑھتے ہو نا انعمت علیہم۔ آپ کی خاموشی پر میں نے فکر کہا ہے، پڑھتے ہو نا ہمیں ان پر، ان کے راستے پر قائم رکھ جو انعام والے ہیں۔ تو اس کا پہلا معنی ہے نعمت، اور آگے انہوں نے اس معنی کو منوانے کے لیے جو آیت لکھی ہے وہ یہ ہے، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نعمت اللہ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ ہاں بیٹا بیٹھ جاؤ، شاباش، بیٹھ جاؤ میرا چاہ، بیٹھ جاؤ۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نعمت اللہ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، پھر بھی اس کا انکار کرتے ہیں۔ نہیں، ذرا تھوڑا سا یعنی بچوں کو تو آپ تو خیر سمجھ گئے، بچوں کو توجہ کرنی پڑے گی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں یعرفون، پہچانتے ہیں نعمت اللہ ہے، اللہ کی نعمت کو، کہ یہ نعمت ہے۔ یعرفون نعمت اللہ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ نعمت ہے، جانتے تھے تو مبارک دے رہے تھے۔ خاموشی پر فکرہ کا ہے، ورنہ میں کہنا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نعمت اللہ کو پہچانتے ہیں، ثم ینکرونہا، پہچاننے کے باوجود اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اب وہ کون سی نعمت ہے جس کو جانتے ہیں، مانتے نہیں، جانتے ہیں مانتے نہیں، وہ کون سی نعمت ہے؟ یہ ہے کتاب، یہ ہے کتاب۔ کتاب کا نام ہے نور الابصار، حضرت علامہ شبلنجی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی، مطبوعہ بیروت لبنان، عربی میں، اندر کا کاغذ پیلے رنگ کا اخباری کاغذ، میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب رسول خدا نے میدان غدیر میں دکھا دیا کہ یہ نعمت اللہ ہے، جب رسول نے میدان غدیر میں دکھا دیا کہ یہ نعمت اللہ ہے، تو 3 دن کے بعد حارث بن نعمان فہری مدینے میں رسول کی مسجد میں پہنچا، آ کر عرض کرنے لگا، یا محمد، آپ نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ، بت توڑ دو، ہم نے پڑھ لیا۔ آپ نے کہا میری رسالت کا اقرار کرو، ہم نے محمد رسول اللہ پڑھ دیا۔ آپ نے کہا نمازیں پڑھو، ہم نے وہ بھی پڑھنی شروع کر دی۔
आपने कहा बचत में से ज़कात दो, हमने वो भी देनी शुरू कर दी। आपने कहा हज पढ़ो, हमने हज भी पढ़ लिया। आपने कहा मैदान जिहाद में लड़ने के लिए चलो, हमने वो भी कबूल कर लिया। क्या इतनी बातों पर राजी नहीं हुआ तो आप अपने भाई को भी मुसल्लत कर दिया? क्या इतनी बातों पर राजी नहीं हुआ जो अब अपने भाई को भी हम पर मुसल्लत कर दिया? प्यारे बच्चों, आज सामने बैठ गए हो तो एक बात मुझसे ले लो, वो अरबी था, ईरानी नहीं था, हिंदी नहीं था, तुर्की नहीं था, इंडियन नहीं था, वो अरबी था। अगर मौला का माना यार होता तो इतनी बड़ी बातें न कर। मेहरबानी बच्चों, ऐलान है, अमर है, मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से है। बस सफीर जिब्राइल, और इस अमर का लाने वाला जो है वो जिब्राइल है, और इस अमर को पहुंचाने वाला जो है वो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ये अल्लाह की तरफ से है। कहते हैं अल्लाह की तरफ से। फरमाया हाँ। अब उसे मुंह फेरा, रसूल से मुंह फेर कर जो अपनी ऊँटनी नाका उसने दरवाजे मस्जिद पर बिठाई थी उसकी तरफ चला। 3 आदमी के साथ और भी थे, आज नहीं पढ़ता फिर कभी पढ़ूंगा, तो उसके साथ चला। अभी ये अपनी नाका तक नहीं गया था, इसने अपना सर आसमान की तरफ उठाया, उठाकर देख कर कहते हैं अल्लाहुम्मा इन काना मुहम्मदुन सादिकन, ऐ मेरे अल्लाह अगर मोहम्मद अली की विलायत के ऐलान करने में सच्चा है तो फिर भी मैं अली को वली नहीं मानता। रोज रोज जलने से बेहतर है फारसिल अलैया शबातन मिनन नार, बेशक मुझे जला दे, आज ही जला दे, अगर जिंदा रहा तो हमेशा जलता रहूंगा। ये मैं नूर और अफसार से पढ़ रहा हूँ, हज़रत अल्लामा शबनम अलैहिर्रहमा की किताब से, कि मुझे आज ही जला दे। बस उसका ये कहना था कि फौरन एक शोला नाज़िल हुआ जिसने जला के राख बना दिया। अल्लाह ने सूरह मारिज में आयत को नाज़िल फरमा दिया, साइला साला साइलुन बिअज़ाबिल बातिन लिल काफिरीन लैसा लहू दाफिअन। बस नहीं पढ़ता
माना यदुन का। अब मैं दूसरा माना लफ्ज यदुन का अर्ज कर रहा हूं। किताब का पहले नाम ले लूं फिर अर्ज करता हूं। किताब का नाम है यदो मिंबर, ये फारसी में है। किताब का नाम है यदो मिंबर। जिल्द नंबर है 3, सफा नंबर है 65। मैं वहां से लेकर पढ़ रहा हूं कि यदुन का एक माना है अल एहसान। यदुन के बहुत प्यारा ये बात है, खुदा जाऊंगा। यदुन के 8 मानी में से एक माना है अल एहसान, यानी किसी पर एहसान करने वाले को यदुन कहते हैं। वाह, अब यहां तक मैं आपको ले आया। अब आपकी आसानी के लिए मैं रसूल की दुआ अर्ज कर रहा हूं। ये भी इन्होंने लिखी है, यही ये दुआ मौजूद है कि रसूल ने आसमान की तरफ सर उठाकर देखा और देखकर बारगाह इलाहिया में रसूल ने अर्ज किया, अल्लाहुम्मा ला तजअल अलैया लिल काफिर यदन। ऐ अल्लाह, किसी काफिर का मुझे ममनून एहसान न बनाना। देखो मैं बहुत कुछ पढ़ गया, आप हजरात अभी सोच में पड़ गए कि कुरान साहब ने क्या पढ़ा है। अल्लाहुम्मा ला तजअल लिल काफिर अलैया यदन, या अल्लाह किसी काफिर का मुझ पर एहसान न बनाना। तो नतीजा क्या निकला कि किसी काफिर का मुझे ममनून एहसान न बनाना। फिर नतीजा क्या निकला कि किसी काफिर को मेरा मोहसिन न बनाना। फिर नतीजा क्या निकला कि किसी काफिर को मेरा मोहसिन न बनाना। मेरे साथ साथ सफर करने वाले मेरे मुअज़्ज़म मुकर्रम सामीईन, अब यहाँ पहुंचकर मैं रुककर एक आयत पढ़ता हूँ जो आपको याद है, सबको याद है, बच्चों को भी याद है जो मजाले सुनने के आदी हैं। अल्लाह फरमा रहा है, मेरा हबीब अलम यजिद का, मेरा हबीब अलम यजिद का यतीमन फआवा। जब अल्लाह ने तुझे यतीम पाया तो क्या उसने तुझे पनाह नहीं बख्शी? यानी उसने तुझे पनाह बख्शी। तो अब अल्लाह क्या फरमा रहा है कि जब अल्लाह ने तुझे यतीम पाया तो क्या उसने पनाह नहीं बख्शी? मुसलमान आलम 156 है, 55 है, 56 है, जितने भी हैं ममालिक इस्लामिया के मुसलमानों के उलमा मुझे जवाब दे कि जब यदुन का एक माना एहसान है, मोहसिन है, अल्लाह फरमा रहा है मेरे हबीब जब मैंने तुझे यतीम पाया तो क्या मैंने पनाह नहीं दी? अब बताओ वो पनाह देने वाला कौन? हम रसूल पाक को वो पनाह देने वाला कौन है, यानी रसूल का मोहसिन कौन है? लो मैं यहाँ 3 किताबों के नाम ले रहा हूं। पहली किताब का नाम शरह नहजुल बलागा, हजरत अल्लामा इब्ने अबिल हदीद मुअतज़िली की, जिल्द नंबर 14, सफ़ा नंबर 270। दूसरी किताब तारीख याकूबी, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 35। तीसरी किताब दायरा मारिफ कुरान करीम। अब मैं इन तीनों किताबों से पढ़ रहा हूं कि जब हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ और अली रोते हुए रसूल के पास आए कि या रसूल अल्लाह मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, आपने फरमाया ला ला वो सिर्फ तेरा बाप नहीं। अल्लाह अल्लाह आगे आगे निकाल लिया। एक बार जरूर पढ़े सलावा। फरमाया ला ला वो सिर्फ तेरा बाप नहीं बल्कि मेरा भी बाप है। जाओ गुस्ल दो, कफन पहनाओ, जब ताबूत तैयार हो जाए मुझे इत्तला दो। ताबूत तैयार हो गया, आज को इत्तला दे दी गई। अब ये है फिक्र इन किताबों में। रसूल
से, अबू तालिब के चेहरे से पर्दा हटाया, हटाकर पेशानी का बोसा लिया, बोसा लेकर रोना शुरू किया। ये ज़माना नबूवत है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। यानी रसूल पाक की तबलीग का दौर शुरू हो चुका है, ज़माना नबूवत है। ये ऐसा नहीं है कि नबी नहीं थे, ये जितना फेल है नबी होने के कहत है। कि अबू तालिब की पेशानी का बोसा लिया, पर्दा हटाया और रो पड़े, और रोने के बाद क्या कहा? ये है उन 3 किताबों में वो कलिमात जो रसूल ने अदा किए। देख कर कहते हैं, या अम्मे रब्बैतनी सगीरन व कफलतनी यतीमन व नसरतनी कबीरन फजज़ाकल्लाहु अन्नी खैरा। ऐ जज्जा रब्बैतनी सगीरन, मैं छोटा सा था, तूने मुझे पाला। हाय 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 हाय। और भाई किस किस ने किस किस को पाला ये मैं जिक्र नहीं करता। अदरुद पढ़े साहब। मुझे टाइम थोड़ा है, बड़ी मेहरबानी, जो मैं रात भी बड़ा लेट हो गया। किस किस ने किस किस को पाला? आप उधर देखेंगे तो मेरा फिक्र समझ में नहीं आएगा, और कल से मैं दरवाजा फिर बंद करा दूंगा अगर आप उधर देखेंगे। भाई किस किस ने किस किस को पाला? किस किस का पाला? किस किस पले हुए से पाला? बस इससे आगे मैं फिक्र नहीं देता। जिनका पाला इस्लाम से पड़ता रहा वो और हैं जो इस्लाम को पालते रहे। शाम में रब्बैतनी सगीरन, चचा जान में सगीर था, छोटा था, आपने मुझे पाला। वरना सत्तनी कबीरा, जब मैं बड़ा हुआ सारा मक्का दुश्मन बन गया, आपने मेरी नुसरत की। वकफलतनी यतीमा, मैं यतीम था, आपने मेरी कफालत का बोझ उठाया। अल्लाह अकबर। फजज़ाकल्लाहु अन्नी खैरा, मैं और कुछ नहीं देता, दुआ करता हूँ कि मेरे एहसानात जो आपने मुझ पर एहसानात किए हैं उनके बदले में अल्लाह तुम्हें खैर देगा। अब बताओ मैं मोहम्मद की दुआ मांगू या तेरे कलिमे सुनूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरूद पढ़िएगा सलावत। अब मैं आखिरी माना दे रहा हूं। 8 मानी में से ये तीसरा माना है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। किताब का नाम फिर ले रहा हूं ताकि यहां से आप ताकीद कर सकें। अत-तहकीक फी कलिमातिल कुरानिल करीम, जिल्द नंबर 14 सफा नंबर 21। मैं वहां से लेकर पढ़ रहा हूं कि यदुन का माना मजाजी और क्या है। वाह मज़हरुल कुव्वतिल मुजरिया, जिससे जिससे जिसकी जिससे जिसकी ताकत जाहिर हो उसे कहते हैं उसका हाथ। मैं बड़े आराम से इसे अर्ज करता हूं। ये अयाम ही ऐसे हैं आपकी दुआओं के साए में इतने जल्दी गुजर जाते हैं कि जो सोच के आता हूं उसका असर अशीर भी बयान नहीं कर सकता। जिससे जिसकी ताकत जाहिर हो उसे कहते हैं उसका हाथ। हमला आवर ने मुझ पे हमला किया, अब मैं सर से दिफा नहीं करूंगा, सीने से दिफा नहीं करूंगा, बड़ी बड़ी लंबी लंबी है, पाल पाल के थक गया हूं।
इन टांगों से दिफा नहीं करूंगा, लेकिन दिफा किससे करूंगा? हाथ से। क्यों? मेरे सर से लेकर पांव तक तमाम जिस्म की कुव्वत का जो मजहर है वो ये हाथ है। तो जिससे जिसकी ताकत का इजहार हो उसे कहते हैं उसका हाथ। अब जिस शिया काफिर है, भाई नहीं मेरे भाई जो काफिर है, अली को यदुल्ला मानते हैं, और भाई अगर अली को यदुल्ला मानना ही कुफ्र है तो फिर यदुल्ला है फौका ऐदीहिम कहाँ जाएगा? देखा ना, मैं पढ़ गया ना, आप जो 2-4 बैठे थे आपको जरूर बोलना चाहिए था। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाह फौका ऐदीहिम। मेरा हबीब, जिन लोगों ने तेरे हाथ पर बैठ की है, इनके हाथों में तेरा हाथ नहीं था, मुझे अल्लाह का हाथ था। तो आप कुफार को बताओ, जब हाथ का मजादी माना है कि जो जिसकी कुव्वत के इजहार का जरिया बने उसे कहते हैं उसका हाथ। तो कितने खदवात हैं जी दामन इस्लाम में? खदवात कितने हैं? 26 बच्चों। और सराया कितने हैं? 36 26 गज़वात में रसूल पाक ने सबसे बड़ा अलम इस्लाम, जिसे कहा जाता है रायतुल इस्लाम, इस्लाम का सबसे बड़ा परचम, यानी छोटे छोटे परचम थे। वो कबीले के जो लोग होते थे ना, ये उसका सरदार, वो उसका सरदार, वो इनका सरदार, वो इनका सरदार, तो छोटे छोटे अलम छोटे छोटों को दिए गए। ये तो एक तारीख है ना कि हाँ बेटा आराम से बैठो, शाबाश शाबाश। छोटे छोटे अलम जितने अपने छोटे छोटे कबीलों के सरदार थे उनको दिए गए। लेकिन रायतुल इस्लाम जो इस्लाम का सबसे बड़ा अलम है, वो अलम किसको दिया गया? पहले मैं चंद किताबों के नाम ले लूं और उसके बाद मैं ये बयान करता हूं कि वो अलम किसको दिया गया। तो लीजिए, जब हम किताबों की तरफ रजू करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं तारीख कामिल, उसके बाद हम देखते हैं तारीख तबरी, उसके बाद हम देखते हैं तारीख अबुल फिदा, उसके बाद हम देखते हैं तारीख खमीस, उसके बाद हम देखते हैं सीरत इब्न हिशाम, उसके बाद हम देखते हैं तबाकात इब्न साद। इन तमाम अहले सुन्नत की किताबों में है कि 26 गज़वात में सबसे बड़ा अलम जिसे दिया गया वो कौन है। तो आप लीजिए, हम तारीख की तरफ रजू कर रहे हैं। पहला गज़वा जिसका मैं नाम ले रहा हूं, गज़वाए अबाबा, पहला गज़वा गज़वाए अबाबा। इसमें अलमदार लश्कर इस्लाम, मैं बार बार नहीं कहूंगा, मेरी लश्कर इस्लाम के अलमदार से मुराद वो है जिसको रायतुल इस्लाम रसूल देते रहे, यानी सबसे बड़ा अलम जिसको रसूल देते रहे। अब मैं बार बार इसकी तशरीह नहीं करूंगा। तारीख में गज़वातुल अबाबा, इसमें अलमदार लश्कर इस्लाम हजरत अली और जनाब हमजा थे। नंबर 2 गज़वा तबा, इसमें अलमदार लश्कर इस्लाम सिर्फ और सिर्फ हजरत अली थे। नंबर 3 गज़वा ज़ातुल अशीरा, इसमें अलमदार लश्कर इस्लाम रसूल खुदा और हजरत अली थे। नंबर 4 गज़वा बदर ऊला, इसमें अलमदार लश्कर इस्लाम हजरत साद मसअब बिन जुबैर, लेकिन ये छोटे अलम उठाने वाले थे, बड़ा अलम उठाने वाला हैदर कर्रार। नंबर 5 गज़वा करकरतुल कद्र, इसमें अलमदार लश्कर इस्लाम सिर्फ और सिर्फ
حضرت علی تھے. نمبر 6 غزوہ بنی قینقاع، اس میں علمدار لشکر اسلام فقط اور فقط حضرت علی تھے. نمبر 7 غزوہ احد، اس میں علمدار لشکر اسلام حضرت حمزہ ابو دجانہ حضرت علی تھے. حمزہ شہید ہو گئے. ابو دجانہ کے بعد سب سے بڑا علم جس کے ہاتھوں میں رسول نے دیا وہ صرف اور صرف حضرت علی تھے. نمبر 8 غزوہ حمراء الاسد، اس میں لشکر اسلام کے بڑے علمدار فقط اور فقط حضرت علی تھے. نمبر 9 غزوہ بنی نضیر، اس میں علمدار لشکر اسلام صرف اور صرف حضرت علی تھے. نمبر 10 غزوہ بدر ثانی، اس میں علمدار لشکر اسلام رسول خدا اور حضرت علی تھے. نمبر 11 غزوہ دومت الجندل، اس میں علمدار لشکر اسلام صرف اور صرف حضرت علی تھے. نمبر 12 غزوہ خندق. ساری اچھا بیٹا میں رکنا نہیں چاہتا تھا، آپ بھی بڑے آرام سے سنتے رہے. یہ بھی نہیں سوچا کہ چلو مولانا کو ذرا سانس دلوا دے. بابا نے بلند آ رہے ہیں. نمبر 12 غزوہ خندق، اس میں علمدار لشکر رسول خدا حضرت علی تھے. نمبر 13 غزوہ بنی قریظہ. نمبر 14 غزوہ بنی لحیان. نمبر 15 غزوہ ذیقرد، اس میں علمدار لشکر اسلام صرف اور صرف علی تھے. جی قربان تھا، اوروں کو بھی تو نام لے نا، اوروں کو بھی لے. میں ضرور لیتا اگر رسول دیتا. اسلام رسول نے کس کو دیا؟ حضرت علی کو. اب اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں جہاں تاریخ ہمیں بتا رہی ہے کہ 16 غزوہ حدیبیہ، اس میں علمدار لشکر رسول خدا صرف اور صرف علی تھے اور رسول پاک تھے. نمبر 17 اب کلیجہ سنبھالیے گا، اب میں نام لے رہا ہوں غزوے کا، دل پہ ہاتھ رکھیے گا. لے رہا ہوں میں نام لے رہا ہوں، آپ گھبرا جائیں گے، میں لے رہا ہوں. نمبر 17 غزوہ خیبر. یہ تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بخاری کو دیکھ لیں، مسلم کو دیکھ لیں، ترمذی کو دیکھ لیں، ابن ماجہ کو دیکھ لیں، طبقات ابن سعد کو دیکھ لیں، باقی کتابوں کو دیکھ لیں، علی صاحب فی تمییز صحابہ کو دیکھ لیں، جتنی مرضی آئے کتابیں دیکھ لیں. کم از کم اسی وقت 50 کتابوں کے نام میرے ذہن میں محفوظ ہیں کہ رسول پاک نے میدان خیبر میں اعلان کیا کیا تھا؟ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. فرار کرا غیر فرار بخاری میں نہیں ہے، باقی ساری حدیث ہے. یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ ویبتہ اللہ علی یدہ. بابا میں کیا کروں؟ رسول جب انتظار کرتا رہا علی کا، خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کے فرمایا میرے صحابیوں اینا علی ابن ابی. کسی کی قوت کا انکار نہیں کرتا. جتنی تھی سب کی. میں کون ہوتا ہوں کسی کی قوت طاقت کا، کسی کی بہادری کا انکار کرنے والا؟ جتنی تھی سب نے سب کی. لیکن یہودیوں کو شکست کس نے دی؟
तुम ने देख लिया कि यहूदियों को शिकस्त देने वाला अली था। यानी जिसके जरिए से जिसकी ताकत का इजहार हो उसे कहा जाता है उसका हा। भाइयों, बुजुर्गों, अजीजों, साहिबाने इल्म, अगर बात मेरी समझ में आ जाए तो थोड़ी सी दुआ कर देना। सफर का मामला है, रात दिन सफर है, तो बात मेरी सुन लीजिएगा, फिर आप जाने, आपका काम जाने कि वो क्या कहलाता है उसका हा। तो जब अली इब्न अबी तालिब ने मरहब को पछाड़ा, अंतर को पछाड़ा, खैबर का किला कला सर किया, डर को उखाड़ा, और उखाड़ कर अली ने सिर्फ उखाड़ा नहीं बल्कि एक यहूदी ने आपकी ढाल पर तलवार मारी, तलवार मारी, ढाल गिर गई। दूसरा खड़ा था यहूदी साहब, उसे वो ढाल उठाई। बेटा तवज्जो है ना तवज्जो, जरा थोड़ी सी बेटा तवज्जो चाहिए। वो ढाल गिर गई। दूसरा यहूदी खड़ा था, वो जल्दी से ढाल उठाकर भाग गया और भागते हुए कहता गया, अब देखूंगा अली कैसे लड़ता है। ढाल उठाई ना तो ढाल उठा के भाग गया। भागने के तो आदि थे ना, तो भागते हुए कहता गया कि अब देखूंगा अली कैसे लड़ता है। जितने हवाले अहले सुन्नत के, अहले शिया के, हमारे उलमाए अहले सुन्नत भी देते हैं, हम भी देते हैं, सुभान अल्लाह, सब इस पर इत्तफाक रखते हैं कि अली ने जब उसके ये कलिमात सुने, जलाल इलाही जलाल में आया, जलाल इलाही जलाल में आया। आगे बढ़े, कलह खैबर के फौलादी दरवाजे में अली ने उंगलियां डाली, यानी अंगुष्ठ सवाबा डाली, डालकर अली ने उसे लर्जाया। वो नहीं लर्जा, पूरा कला लर्जा। अली ने खैबर का दर उड़ाया और उसकी पुल बनाई, सहाबा को अंदर कले में लाए। अब सहाबा अर्ज करते हैं, है सूखे जौ के टुकड़े खाने वाले अली। है सूखे जौ के टुकड़े खाने वाले अली। है सारा साल अय्याम ईद के अलावा रोजों में बसर करने वाले अली। है बालों को पानी देकर बसरे औकात के लिए वक्त बसर करने वाले अली। है अपने हिस्से का खाना उठाकर यतीमों को, मिस्कीनों को, असीरों को देने वाले अली। है माले गनीमत को जरूरतमंदों में तकसीम करने वाले अली। जरा ये तो बता कि ये फौलादी दरवाजा जिसे 40 आदमी मिलकर खोलते हैं और 80 आदमी मिलकर बंद करते थे, तूने सिर्फ अंगुष्ठ सवाबा की हरकत से कैसे उड़ा दिया?
अंगुष्ठे सबाबा की हरकत से कैसे उड़ा दिया। अब ये है अली का जवाब। फरमाते हैं मेरे रसूल के प्यारे प्यारे सहाबियों, मां कलात बाबा खैबरन बेकुव्वत जिस्मानिया वलाकिन बेकुव्वत रब्बानिया। मैंने खैबर का दरवाजा जिस्मानी कुव्वत से नहीं उखाड़ा बल्कि रब्बानी कुव्वत से उखाड़ा है। अली का ये कहना दलील बन गया कि अली कालबियतुल्लाह था। मुझे अफसोस है कि रविश में आगे बढ़ जाता हूं। दो मकामात मुझे ऐसे मिले हैं जहां हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुद आगे बढ़कर असर को बुलाया है, क्योंकि शबीए गहवारा शहजादा यसर अलैहिस्सलाम ने बरामद होना है। मुझे माफ रखना, मैं ज्यादा नहीं पढ़ सकता। मुझे तारीख में ऐसे मिले हैं जहां इमाम हुसैन ने खुद शहजादा यसर को बुलाया है। पहला मकाम मदीने में, ये मदरसा, ये हमारा सेंटर है। मैं रोजाना कहता हूँ अल्लाह करे हमेशा कायम रहे, ज़हूर और कायम तक। मैं किताब का नाम ले रहा हूँ, कोई साहब शक नहीं करेंगे। किताब का नाम है ज़िक्रुल मसाइब, जहां मौजूद होगी। फिर नाम ले रहा हूं ज़िक्रुल मसाइब, तशरीह नहीं करूंगा, आपके ज़हनों में है। जब काफिला मदीने से चलने के लिए तैयार हो गया, तमाम नाकों पर कचावे सजा दिए गए, तो एक नाका ऐसा था जिसकी तरफ हुसैन की वो बेटी बढ़ी, जिसको यकीन था कि कोई बीबी जाए ना जाए मैं जरूर जाऊंगी। सुभान अल्लाह, समझ गए होंगे। फिर कहता, जिसे यकीन था कि घराना है अहले बैत की, कोई और मस्तूर जाए ना जाए मैं जरूर जाऊंगी। क्यों? इसलिए कि बाबा अकबर के बगैर नहीं जा सकते और अकबर मेरे बगैर नहीं रह सकता। इस सोच पर ये बच्ची पहले जाकर महमल में बैठ गई। अब जब बीबियों ने देखा कि सुगरा महमल में बैठी है, हर एक बीबी ने बुलाया, लेकिन जनाब सुगरा महमल से नीचे नहीं उतरी। इमाम हुसैन को इत्तला मिली कि सुगरा महमल में बैठी है, नीचे नहीं उतर रही। इमाम खुद नहीं आए, अब्बास को नहीं भेजा, कासिम को नहीं भेजा, बल्कि आंखों में आंसू भर आए। फरमाया अकबर, तुम्हारी बहन महमल में बैठी है, बस इतना सुनना था। शहजादा अली अकबर चले। जो मैंने पढ़ा है, जो सुनते रहते हो वो अलग है, जो मैंने पढ़ा है वो ये है। चुप करके उस महमल के नीचे आए जिसमें जनाब सुगरा बैठी थी। यूं दाया हाथ कजाले में रखा, एक मर्तबा बहन को देखा, फिर सर झुकाकर रोना शुरू किया। जैसे अकबर ने रोना शुरू किया, सुगरा की धारे निकल गई। आवाज देकर कहा अकबर रोना बंद कर, हुक्म सुना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब कर कहा बहन, बाबा का हुक्म है कि सुगरा को महमद से कहो नीचे आ जाए, क्योंकि इमाम का हुक्म था। ये इमामजादी थी, तसव्वुर में भी नहीं जा सकता। फौरन महमद से नीचे उतरी। जब उतरी, तमाम बीबियां सुगरा को गले लगाकर रोने लगी। लेकिन जब बीबी रुबाब ने आकर सुगरा को गले लगाया तो हाथ बांध कर कहती है अम्मा, मैं और आज कुछ नहीं मांगती, मुझे मेरा असगर दिखा दो। साहिबाने दिल, साहिबाने औलाद, जब बीबी ने कहा ना मुझे मेरा असगर दिखा दो, तो जनाब रुबाब ने जल्दी से कपड़े में लिपटा हुआ असगर बीबी सुगरा के हवाले किया। शहजादी ने सीने से लगाया, मुंह सर चूमा, प्यार किया, काफिला रवानगी के लिए तैयार हुआ। अब हर बीबी ने
ने सुगरा से कहा कि सुगरा असगर पलटा दो। कहा तुम सारे चले जाओ, मैं कुछ नहीं कहती कि मुझे ले चलो, सिर्फ असगर मेरे पास रहने दो। मैं आपसे वादा करती हूं कि जब आप वापस आएंगी तो असगर आपको किला नहीं देगा। जिस बीबी ने असगर को पुकारा, असगर बहन के कलेजे से चिमटा, क्योंकि पता था जाके वापस नहीं आना। हुसैन को इत्तला मिली और याद वालों ये वो पहला मौका है। इमाम हुसैन आगे बढ़े, सुगरा ने सर झुकाकर सलाम किया, आंखों में आंसू है। बेटी बाबा हो, बेटी असगर लेने आया हो। बाबा इनकार तो नहीं कर सकती, आया इमाम बन के बुला रहे हो। कहा बेटी इस वक्त तुझे बेटी कह रहा हूं। कहा बाबा फिर हाथ मांग कर, ये बेटी बाप की खिदमत में अर्ज करती है कि असगर को बुलाओ। अगर असगर चला आए तो मेरा इनकार नहीं, अगर ना आए तो आखिर मैं भी बहन लगती हूँ, मेरे पास रहने दो। लेकिन बाबा इमाम बन के ना बुलाना, क्योंकि इमाम की इताअत हर हालत में वाजिब है। रोने वालों हुसैन आगे बढ़े, लिपटा हुआ असगर बहन के कलेजे से। इमाम ने आवाज दी असगर। बच्चे ने देखा, आंखें बंद करके बहन के कलेजे से लिपट गया। शायद असगर को मालूम था कि आज के बाद बहन की गोदी नहीं मिल सकेगी। इधर असगर लिपटा, उधर हुसैन आगे बढ़े। असगर के कान पर मुंह रखकर, किताब का नाम ज़िक्रुल मसाइल, मुंह रखकर हुसैन ने कुछ कहा। अभी कहा ही था कि असगर ने तड़प कर बहन की गोदी को छोड़ा। अब सुगरा ने हाथ बांध कर कहा कि बाबा मैं ये नहीं कहती कि असगर मुझे पलटा दो, मुझे इतना बताओ क्या कहा है जो असगर ने मेरी गोदी को छोड़ दिया है। कहा बेटी मैंने कहा असगर तू यहाँ मदीने में बहन के पास रहना चाहता है। हाय करबला, मरहबा मरहबा मरहबा। सैयदा दुआएं दे रही है। ये है पहला मौका। दूसरा मौका, हुसैन ने जब करबला में ये इस्तिगासा बुलंद किया था, है कोई ऐसा जो हम गरीबों की मदद करे? किसने जवाब दिया? ये बड़ा वसी मौजूद है। ये इतने में जनाब फिजा खैमे के दरवाजे से आए। खैमे के दरवाजे से चादर से हुसैन को इशारा किया कि ज़हरा का लाल एक मरतबा फिर खैमे में आओ। अब जो इमाम खैमे के दरवाजे पर आए, आगे सैयदा ज़ैनब बढ़ी। बहन खैर है, मुझे आपने बुला लिया है। कहा भैया ना बुलाती, लेकिन क्या करूं, जब से आपने मदद के लिए इस्तिगासा बुलंद किया है, आओ जरा देखो असगर आराम नहीं कर रहा, बल्कि असगर अपने झूले में तड़प रहा है। अब हुसैन आगे बढ़े, बढ़कर तड़पते हुए असगर को देखा। ये दूसरा मौका है। जिस फूफी ने असगर को बुलाया था, असगर किसी के पास नहीं गया। ये दूसरा मौका है। इधर इमाम ने बुलाया, हिम्मत कर असगर हुसैन के हाथों पे आया। बस मैं तफसील नहीं पढ़ता। जब हुसैन के हाथों पर आया, कहा बेटा हर बीबी को इशारों इशारों में आखिरी सलाम कर लो। असगर ने आखिरी सलाम किया। हुसैन लेके चले या खैमे के दरवाजे पर देखा, असगर की माँ बीबी उम्मे रुबा सर झुकाकर रो रही। जब बीबी रुबाब को रोते हुए देखा, इमाम फरमाते रुबाब अगर भेजना मंजूर नहीं है तो तुम्हारा असगर तुम्हें लौटा दूं। कहा नहीं मौला ये बात नहीं। फिर रो क्यों रही हो? मौला इसलिए रो रही हूं कि ये सिर्फ 6 महीने का है, अकबर 18 साल का था। रो लो जनाबे बतूल को पुरसा दे लो। ये सिर्फ 6 महीने का है, अब्बास 32 साल का था। ये सिर्फ 6 महीने का है, कासिम 13 साल का था। अल्लाह जाने मेरा बेटा किस तरह शहादत कबूल करेगा। मरहबा मरहबा मरहबा।
का बोसा ले लूं? लोग आप सोच के लेना, आज के बाद बोसा लेना नसीब नहीं होगा। और हाथ वालों बीबी चुकी, बोसा लिया, हुसैन चले, बस 2-4 जुमले, हज बड़ा आपको मुसाफ ठहराए, बोसा लिया, असर को हुसैन लेकर चले। जब चले मैदान में पहुंचे, अब असर के लिए हुसैन ने पानी कैसे तलब किया मैंने कभी तफसील नहीं पढ़ी। आज मेरा ख्याल था मैं बड़ी शहादत इंशाअल्लाह तफसील से पढ़ूंगा, लेकिन खुदाई में मैं बहुत आगे बढ़ गया। इमाम लाए, असर के चेहरे से पर्दा हटाया, आवाज देकर कहा, शामियों, कूफियों, यजीदियों, तुम्हारी निगाह में अगर किसी किस्म की खता है तो मेरे मुतल्लिक है, ये तो 6 महीने का है, देखो इसके लब खुलते नहीं, एक घूंट पानी पिला दो। किसी ने जवाब नहीं दिया। अब 3 मरहले हैं। पहला मरहला ये है, इमाम फरमाते मैं इसे जमीन पे सुलाता हूं, तुम खुद पानी पिला दो। जब जमीन पर लिटाया, मैं पढ़ गया, आपने सुन लिया, अंदाजा लगाओ रेत कितनी गर्म थी। और असर क्या है, सिर्फ 6 महीने का। जब लिटाया, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, पढ़कर हुसैन ने उठा लिया। अब दूसरा मरहला, जितने कतार में यजीदी खड़े हुए थे, हुसैन ने यूं जैसे कुरान कारी उठाते हाथों में, असर को हाथों में उठाया, एक कोने से शुरू हुए, एक एक को दिखाते गए, दिखाते गए, दिखाते गए, फरमाते मुझे न दो, खुद पिला दो। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब तीसरा मरहला, हुसैन ने यूं असर को हाथों में उठाया, उठाकर दोनों बाजू बुलंद किए, चारों तरफ दिखाया, दिखाकर कहा, देखो किस तरह ये खुश ज़बान अपने लबों पे खिला रहा है, अब तो इसे एक घूंट दे दो। हाय रोने वाले, घूंट का नाम आना था या खुरमला खाती। बस बेटा, बस बेटा, बस, शाबाश 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 शाबाश। यही गरीबों के गम में रोने का हक है जो आप अदा कर रहे हैं। मेरा बेटा 1400 साल के बाद सिर्फ सुनकर अपना मुंह पीट रहा है। मुझे बताओ, जो दरवाजे से बीबी रुबाब देख रही थी, सकीना देख रही थी। मरहबा मरहबा मरहबा। बस 2 कलमे और सुन लो, बस मैं मसाइल खत्म कर रहा हूं। हुरमला ने 3 नौकों वाला तीर छोड़ा, और आज लिखा है कि ये तीर मैदान जंग में सवारों पर नहीं चलाया जाता था, बल्कि जानवरों पर चलाया जाता था। और जहां तीर लगता था, यार अब भी मैं पढ़ूंगा, अब भी आप सुनकर रोएंगे। 6 महीने का फूल गुजा, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय रुबाब, हाय हुसैन। 6 महीने का असर गुजा, 3 नौकों वाला तीर जहर में बुझा हुआ, इसे छोड़ा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इधर इसकी कमान से तीर चला, उधर खैमे का पर्दा हिला। जनाब रुबाब ने आवाज देकर कहा, खबरदार असर, गर्दन ना हिलाना, तीर बाबे को न लगने देना, दादी ज़ारा से शर्मिंदा न कराना। हौसला हौसला, जरा हौसला, जरा हौसला, सलामत रहो, जरा हौसला। बस आखिरी कलमा, हजरत अल्लामा, फिर नाम दे रहा, हजरत अल्लामा सैयद मेहदी लखनवी ने अपनी किताब में लिखा है, हमें कहा है, जागरों, खतीबों, वाइजों, सिर्फ इतना ना पढ़ा करो कि असगर को एक तीर लगा। ये यहाँ पूछ लेना अल्लामा साहब से, एक तीर लगा। हजरत अल्लामा मेहदी लखनवी लिखते हैं, असगर को एक तीर नहीं लगा। इधर तीर लगा, असगर बाबा के हाथों पर चढ़ पा, और उधर हसीन बिन नुमैर मलून ने असगर के शिकम में एक ऐसा तीर मारा, शिकम 12 हो गया। फिर नीचे लिखते हैं,
बेटा तू रो के बेहोश हो रहा है, तुझे पानी मिल रहा है। हाय अली असला, हाय रुबाब का असला। बस नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता, बस सब करता हूं, नहीं पढ़ता। और रोने वाले हुसैन लाल, बस आखिर में छोड़ दो, हुसैन लाल, हुसैन लाल। छोटी सी कमर खोदी, कमर खोद कर असर को सुलाने के लिए हुसैन को जादू होकर बैठे। सारी बीबियां जमा है, बीबी बाप भी जमा है, मौजूद है। रो कर कहती है मौला, है मौला, कमर तो खोद ली है, अब असर को गोदी में लेकर क्या सोच रहे हो? कहा रुबाब, रुबाब आज मेरी मदद का। रुबाब